السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف، سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد سلمان کے درمیان ملاقات میں وزیر اعظم نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں اعلیٰ سطح سعودی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کا ذکر کیا اور اس دورے کے دوران دستخط کردہ مفاہمت کی یادداشتوں کی بنیاد پر پاک سعودی معاشی شراکت داری کا بھی احاطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے سعودی ولی عہد کی دور اندیش قیادت کو سراہا اور کہا کہ سعودی ویژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے اپنے وفد کی پرتپاک مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کوئی ملک تنہا آگے نہیں بڑھ سکتا، پائیدار مستقبل کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ سعودی عرب اور عالمی شراکت داروں کے درمیان سے ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے۔ ریاض میں مستقبل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر 8ویں کانفرنس سے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں ذیشان علی بھٹی سے۔ مستقبل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر ہونے والی 8ویں کانفرنس میں دنیا بھر سے 7,000 سے زائد عالمی رہنما اور مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور پائیدار مستقبل کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ کل کی تعمیر کے لیے آج سرمایہ کاری کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ سعودی عرب اور دوست ملکوں کے تعاون سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ ہم مل کر ہی پائیدار مستقبل اور ترقی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ Future of human advancement doesn't lie in isolation. It lies in collaboration, in working together for win-win outcomes. No nation can overcome today's challenges alone, and no single country can harness the potential of tomorrow without the support of others. Pakistan stands ready to join those countries who dare to dream big. محمد شہباز شریف نے کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کو ہنرمند اور بااختیار بنانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ Projects like Danish School, that is Intellect Schools, and the Education Endowment Fund in Pakistan that my government steered made quality education accessible to those who once saw it as an unattainable dream. Alhamdulillah, their dream has come true. Today, these young graduates aren't just students, they are great builders of tomorrow as doctors, engineers, and innovators. وزیر اعظم نے کہا کہ مصنوعی ذہانت ہر شعبے میں انقلاب برپا کر رہی ہے۔ ہم ان پر مبنی معیشت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں پر سرمایہ کاری ضروری ہے۔ Artificial intelligence is more than a trend. It is a force revolutionizing economies, societies, and industries. Our mission is clear, and it is to encourage young minds to redefine the boundaries of AI, training skilled engineers and data scientists as the backbone of Pakistan's AI growth. صحت عامہ کے شعبے میں حکومت کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں طب کے شعبے سے متعلق بہترین درسگاہیں اور جدید ہسپتال قائم ہیں۔ ہم اس شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ Health is the cornerstone of human advancement, and Pakistan's healthcare sector is home to over 275,000 registered doctors, with our youth pioneering new health tech solutions. With advancements in healthcare standards, we envision a future where our doctors and scientists collaborate across borders for a healthier tomorrow. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے ایک بار پھر غزہ میں جاری خون ریزی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے امن اور ترقی کے لیے غزہ میں امن ناگزیر ہے۔ This dream will never be fulfilled, come to its certainty and transformed into action
unless peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमा रवा और वली अहद को मुबारकबाद पेश करते हुए शाह सुलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सुलमान के तरक्की से मुतल्लिक विजन को काबिल सताइश करार दिया। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली काम कर गई। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया गया। पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। टास्क फोर्स में चेयरमैन वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशियल्स और दीगर इदारों की नुमाइंदगी भी शामिल है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक टास्क फोर्स पावर सेक्टर में मुख्तलिफ इस्लाहात के जरिए मुल्क की इक्तसादी तरक्की और अवाम की बेहतरी के लिए जामे इक़दामात कर रही है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 9.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की वजह से ये इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तवानाई मज़ीद कहा है कि इस्लाहात का मकसद बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की दस्तयाबी को बेहतर बनाना और एक मुस्तहकम मुसाबकती पावर मार्केट का क़याम है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ मुआहिदों की जांच पड़ताल और कुछ के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी किए हैं। इन इक़दामात से न सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी बल्कि हुकूमत के अखराजात में भी कमी आएगी। एक नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा जहाँ सार्फिन बिजली खरीद सकेंगे। नई पावर मार्केट में सार्फिन मुख्तलिफ कंपनियों की पेश करदा बिजली के पैकेजेस में से भी इंतखाब कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स इस वक्त 300 से ज़ायद पॉइंट्स के बाद 91,164 पर ट्रेड कर रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी ज़मीर अब्बास, क्या अपडेट है आपके पास? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और बेहतरीन दिन। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। सुबह से लेकर अब तक दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 91,871 पे पहुंच चुकी है। माहिरीन का कहना है कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ जो दौरे पे सऊदी पे हैं, वहां पे उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के साथ साथ तिजारत और बाहमी ताउन के फरोग के लिए भी बातचीत हुई। उसका काफी इम्पैक्ट पड़ा है, खास करके पाकिस्तान जो कि इस वक्त सरमाकारी की तलाश में है। नए से नए मौके पैदा किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सरमाकारी हो। गल्फ स्टेट्स भी हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें काफी इंटरेस्ट रखते हैं, खास करके मिनरल्स एंड माइंस में। इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में खास करके वो कंपनीज जो कि मिनरल्स एंड माइंस से डील करते हैं या ऑयल एंड गैस से डील करते हैं, उनके शेयर्स में काफी तेजी देखने में आ रही है। जो मौशी इंडिकेटर्स हैं वो काफी पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज पर। नेक्स्ट वीक हम देख रहे हैं कि 4 नवंबर को स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है। उसमें हम यही देख रहे हैं कि जरी पॉलिसी जो है उसे दोबारा अनाउंस की जाएगी 2 माह के लिए। उम्मीद यही की जाती है कि इसमें तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स कम किए जाएंगे, जिसके बाद जो मुल्क में मौशी सरगर्मियां उसमें मजीद फरोग मिलेगा। माहिरीन का कहना है कि अगर इन पॉलिसीज का तसलसल इसी तरीके से जारी रहा तो न सिर्फ मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी बल्कि मौशी अशारी मजीद मुस्तहकम होंगे और हमारी जो मुल्क के जो फ्यूचर है वो काफी रोशन होगा। जी, ज़मीर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए अमली हिमायत की ज़रूरत है। माशी मैदान हो या मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस, हमें एक टीम की तरह काम करना है। सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सख्त फैसलों के बाद मुल्क को बचाने में कामयाब हुए दुनिया का फ़र्ज़ है कि वो हमारे जैसे ममालिक की मदद करे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारा क्लाइमेट चेंज में 1% भी हिस्सा नहीं। हम क्लाइमेट चेंज से 7वें सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान को 2 साल कबल तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 30 अरब डॉलर तखमीनन नुकसान की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान का अपना ग्लोबल एमिशंस में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन हम 7वें सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क हैं। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज के महाज पर हम मुतासरीन में शामिल हैं। हम क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करने वाले ममालिक में नहीं बल्कि उससे मुतासर होने वाले मुल्क में हैं। दुनिया का फ़र्ज़ है कि वो हमारे जैसे ममालिक और दीगर हमारे जैसे ममालिक की मदद करे जो तरक्की याफ्ता ममालिक की गैर ज़िम्मेदाराना तरक्की का निशाना बने हुए हैं।
एहसन इकबाल ने कहा कि अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सख्त फैसलों के बाद मुल्क को बचाने में कामयाब हुए। मुल्क में तजारती खसारा कम और महंगाई में कमी आई है। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खुशाइंद है। आप 25 करोड़ तहज्जुद गुजार यहाँ पे ला के जमा कर लें, आपकी काबीना सारी नोबल प्राइज़ के लोगों की हो, लेकिन अगर आपके मुल्क में अमन नहीं होगा, इस्तेहकाम नहीं होगा, तसलसल पॉलिसीज़ का नहीं होगा और कमिटमेंट टू रिफॉर्म नहीं होगी, तो वो नोबल इनाम याफ्ता और जितने तहज्जुद गुजार हैं सब फेल हो जाएंगे। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बरतानिया ने एजाज दिया तो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, मगर हम बरतानिया की सड़कों पर शोर मचा रहे हैं। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ज़राअत की तरक्की पर मबनी 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब कराची में मुनाक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद टेक्नोलॉजीज़ और पायदार सेहत से मुताल्लिक ज़राअत के तरीक़ों को नाफिज करना है। सिंध की सूबाई वज़ीर वुमेन डेवलपमेंट शाहीना शेर अली ने कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शाहिद नज़ीर, सेक्रेटरी ज़राअत सिंध रफ़ीक अहमद बरूरो, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत जहांगीर काकड़, सेक्रेटरी ज़राअत KPK अताउर रहमान और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की चेयरपर्सन दुर्दाना शहाब ने बैनुल-अक़वामी एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव इख्तिरात को बरूएकार लाकर ज़रूरी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट जैसे अहम मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें स्टेक होल्डर्स, माहिरीन, मुहक्किकीन और पॉलिसी साजों को इकट्ठा करते हुए जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोख्त और दरियाफ्त करेगी। कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में सिंध, बलूचिस्तान और KPK के महकमा ज़राअत ने भी शिरकत की। ज़रूरी फाइनेंसिंग के बारे में शऊर उजागर करने के लिए मारूफ मालियाती इदारे बशमूल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और सऊदीया पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान में पायदार ज़राअत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2024 एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है जो सिंध में अपनी नौइयत का पहला इक़दाम है। SIFC और पाकिस्तान इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की मुआवनत से सनत के फ़रोग़ और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सरमायाकारों की सहूलत के लिए सनती पार्क से क़याम पर काम हो रहा है। इस सिलसिले की इब्तदा मलीर में इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम से की जा रही है, जिससे कारोबारी इदारों को अहम तिजारती और लॉजिस्टिक रास्तों तक बगैर किसी रुकावट के रसाई मिलेगी। मलीर इंडस्ट्रियल पार्क के कारोबारी पार्क या ऑफिस पार्क की मानद होगा, जो भारी सनत की बजाय छोटी सनतों और मुख्तलिफ सनती दफातर पर मुश्तमिल होगा। इस मनसूबे के तहत पहले 5 सालों में 2 लाख से ज़ायद मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। मनसूबे से बेहतरीन इस्तेफादा करने के लिए कराची की एक मारूफ कंपनी कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी मलीर इंडस्ट्रियल पार्क के एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया जाएगा। नेशनल हाईवे और मलीर एक्सप्रेस वे समेत बड़ी शाहराहों के संगम पर वाक़ई ये पार्क कराची पोर्ट और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त जुड़ता है, जो मुकामी और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक फौरी और मुअस्सर रसाई को यकीनी बनाएगा। बिलाशुबा SIFC के इस इक़दाम से नए सनती पार्कों के क़याम के नतीजे में बरामदात में इजाफा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, जो कौमी मईशत के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। नाज़रीन, अवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 20 से 28 अक्टूबर के दौरान मुल्क भर से 1105 सिगरेट के स्टॉक्स, 71 मीट्रिक टन आटा, 293 कपड़े के थान और आशारिया 131 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 सितंबर 2023 से अब तक 13,000 मैट्रिक टन खाद, 3,700 मैट्रिक टन से ज़्यादा आटा, 35,000 मैट्रिक टन से ज़ायद चीनी, 43,81,000 से ज़ायद सिगरेट के स्टॉक्स, 1.5 लाख से ज़ायद कपड़े के थान और 17.5 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में मुलजिमों में चालान की नकूल तकसीम कर दी हैं और 8 नवंबर को अगली समात पर बानी PTI समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने सानिया 9 मई और GHQ हमला केस की समात की। उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद और राजा बशारत समेत दीगर रहनुमा पेश हुए। अदालत ने तमाम मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम करने का हुक्म दिया। अदालत ने 8 नवंबर को आइंदा समात पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से ज्यादा अरसे से PTI की हुकूमत है। सूबे के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसकी बड़ी मिसाल कोहाट के इलाके बराकर और दीगर नवाही इलाकों में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी है। पेशावर से साजिद अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं।
یہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کا نواحی علاقہ براکا ہے جو شہر سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ سماجی اور معاشی طور پر علاقہ اتنا پسماندہ ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی اس علاقے کے مکین پینے کے صاف پانی جیسے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ علاقے میں صاف پانی کی فراہمی کا کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی افراد برسوں سے جوہڑوں اور تالابوں کا گندا اور مضر صحت پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ مضر صحت پانی کے استعمال سے گزشتہ دنوں براکا گاؤں کے 2 درجن سے زائد افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے تھے، جن میں ایک خاتون گزشتہ روز انتقال کر گئی۔ متاثرہ خاندان اور گاؤں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار علاقے کے منتخب ارکان اور متعلقہ حکام کو شکایات درج کرانے کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اتنا پسماندہ علاقہ ہے کہ نہ تو اس میں کوئی پینے کے پانی کا کوئی بندوبست ہے، نہ کوئی یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے، نہ کوئی ڈسپینسری ہے، اور ہمارا یہ زہریلا پانی، یہ جو تالاب اور کنویں کا پانی ہم پیتے ہیں، یہ زہریلے پانی کی وجہ سے یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ میری بھابھی ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی جو صوبائی حکومت ہے ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، اور کھواڑ کی انتظامیہ، ڈی سی صاحب، ای سی صاحب اور یہ جتنے بھی محکمے کھواڑ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں۔ اس ماڈرن اور جدید دور میں اس تالاب کا پانی ہم پی رہے ہیں جدھر سے جانور وہ بھی پیتا ہے اور ہم بھی پیتے ہیں۔ ہمارا یہ انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، ڈی سی صاحب، ایم این اے، ایم پی اے، ان سے شکوہ ہے، شکایت ہے کہ اتنے بڑے ایشو میں آپ نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ یہ صرف کوہاٹ ضلع کا ایک گاؤں نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کے صاف پانی کی سہولت کی عدم دستیابی کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ صورتحال صوبے پر گزشتہ 11 سال سے حکومت کرنے والی جماعت پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سماجی حلقوں کی طرف سے حکومتی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ صوبے کے وسائل سیاست کے نظر کرنے کی بجائے پی ٹی آئی عوام کی فلاح و بہبود پر کب توجہ مرکوز کرے گی۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پی ٹی آئی سینیٹر ثانیہ نشتر سینٹ کی نشست سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ ان کا استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ کو موصول ہو گیا ہے اور سینٹ سیکریٹریٹ نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے استعفے کی منظوری کا باقاعدہ عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر ثانیہ نشتر خیبر پختونخوا سے 2021 میں سینیٹر منتخب ہوئی تھیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کی اقوام متحدہ کے امدادی آپریشنز پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لاکھوں بے یار و مددگار فلسطینیوں کے لیے امداد اور بحالی کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنا عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری ہے۔ بیت لاہیہ میں رہائشی علاقے پر وحشیانہ فضائی حملے میں دیگر افراد جو ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے اور 19 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی افراد کے ملبے تلے دبنے کے باعث شہادتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ خان یونس، دیر البلا، رفح اور مواسی میں بے گھر فلسطینیوں پر بھی حملے کیے جس میں متعدد افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز سے جاری حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 143 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں ایک جھڑپ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان پر بھی صہیونی حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائی میں 15 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ کل سے جاری اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے لبنانیوں کی تعداد 77 ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ رواں ماہ جھڑپوں میں اب تک 33 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا پر پابندی عائد کیے جانے پر عالمی رہنماؤں کی طرف سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھی اونروا کے آپریشنز ختم کرنے کی تازہ ترین اسرائیلی کوشش کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی ایک اور خلاف ورزی کی گئی ہے۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اسرائیل کے اس اقدام کی جواب دہی ہونی چاہیے۔ 16 ممالک نے اونروا پر اسرائیلی پابندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ اونروا پر پابندی کو کسی بھی طور قبول نہیں کیا جا سکتا۔
UNRWA के सरबराह ने इसराइली फैसले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। जनरल असम्बली के सदर को लिखे एक ख़त में UNRWA के सरबराह ने कहा कि गज़ा में कहत की सूरत हाल है और इमदाद न पहुँचने की सूरत में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA पर इसराइली पाबंदी का फैसला फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने के मुतरादिफ है और इस फैसले के नतीजे में मज़ीद बच्चों की अमवात होंगी। उन्होंने कहा कि अगर UNRWA को काम करने से रोका गया तो गज़ा में इंसानी हमदर्दी के निज़ाम का खात्मा हो सकता है। जनूबी लबनान में सैदा शहर के करीब इसराइली फ़ज़ाइया की ताज़ा बमबारी में 15 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के एक कंपाउंड समेत 3 रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइल ने जनूबी लबनान में सुर हरफा, हनीन, एतुशब और ख़याम के कस्बों पर भी हमले किए। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद इसराइली फ़ौजों की हलाकत की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब शिमाली इसराइल सरहदी बस्तियों में सायरन सुनाई दिए गए हैं। इसराइली मीडिया ने मगरबी अल-जलील में सायरन की आवाज़ें सुनाई देने की इत्तला दी। लबनान के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की 18वीं खेप कामयाबी के साथ बैरूत पहुंच गई। NDMA के मुताबिक बैरूत पहुंचने वाली इमदाद 95 टन सामान पर मुश्तमिल है। इमदादी सामान खुसूसी परवास कर लेबनान भिजवाया गया। तर्जुमान NDMA का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन और लेबनान के जंग से मुतासरा बहन भाइयों के इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मोदी सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का आगाज किया, जो आगे चलकर उनकी हुकूमत के गले का फंदा बन गया। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में FDI को शदीद मसाइल का सामना और गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला शिकनी की जाती है। ब्यूरोक्रेसी रुकावटों के बायस कारोबारी शख्सियात अपना पैसा मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करने को तरजीह देते हैं। द हिंदू के मुताबिक चीनी और दूसरी गैर मुल्की मसनूआत जैसा कि सोलर पैनल और मोबाइल फ़ोन के मार्केट ने भारत की लावा और माइक्रोमैक्स चीनी कंपनियों का कारोबार ठप करवा दिया है। भारत में तिजारती खसारे की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। भारत में 35% B.Tech, 77% पॉलीटेक ग्रेजुएट्स और 60% IT ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। रिसर्चेंट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पॉस्को के स्टील मिल प्रोजेक्ट को 9 साल की ताख़ीर का सामना करना पड़ा। भारत माला प्रोजेक्ट का पहला मरहला गुज़िश्ता साल मुकम्मल होना था, जो अब 2027 में मुकम्मल होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी 7 साल से ताख़ीर का शिकार है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो चुका है। ज़िक्र मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाज़ उमर फारूक ने मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें दोबारा शुरू करने और इस सिलसिले में हिकमत अमली और असर नौ मुरतब करने का ऐलान किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाज ने श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीर जैसे पेचीदा मसाइल के हल की खातिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अज़्म का इजहार किया। भारतीय फौज ने राजौरी और पूंछ अजला में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान घरों की तलाशी ली जा रही है, नौजवानों को गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि लोगों की निगरानी के लिए जदीद आलात नस्ब किए गए हैं और फौज का गश्त बढ़ा दिया गया है। दूसरी जानिब जिला गांदरबल में ताजरों ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी पर काबिज हुक्काम के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपना कारोबार बंद रखा। तौहीद चौक मार्केट के दुकानदारों ने बिजली की अदम फराहमी, पानी की किल्लत, नाकाफी स्ट्रीट लाइटिंग और निकासी आप के नाकिस निज़ाम जैसे मसाइल पर अपनी मायूसी का इज़हार किया। ताजरों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात के अदम दस्तयाबी से उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा है। सिला और गज़ई में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले करने वाले 3 खवारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। खवारजी दहशतगर्दों ने और गज़ई में डिबोरी बादान किले के मकाम पर इंसदाद पोलियो टीम पर हमला करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर अवाम ने खुशी का इजहार किया है। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में नारेबाजी की और FC एहलकारों को कंधे पर उठा लिया। निहत्ते और मासूम अवाम पर हमला करना फितनातुल खवारिज के ख्वारिजीन का बुज़दिलाना इक़दाम है। FIA क्राइम सर्कल हज़ारा ने फ्रॉड करने वाले 12 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान ने कर्जों के नाम पर 471 मिलियन का फ्रॉड किया था। FIA हज़ारा सर्कल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि HBL हरीपुर में ज़रूरी कर्जे देने के लिए जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल किया गया। कर्जे के हसूल के लिए ज़मीन की कीमतें मार्केट और सरकारी रेट से मुतसादम नहीं थीं। ज़्यादातर कर्जे ज़मीन की जाली दस्तावेज़ की बुनियाद पर दिए गए। मुल्ज़िमान से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। अमरीकी कौंसलेट जनरल क्रिस्टीन हॉकिंग ने कहा है कि मुल्तान एक तारीखी शहर और अजीम सकाफती वर्से का अमीन है। घंटाघर मुल्तान की अहम तारीखी इमारत है। इसकी तारीखी खतूत पर बहाली और तज़ीन व आराइश का काम अमरीकी ताउन से शुरू किया जा रहा है। वो घंटाघर की बहाली और तज़ीन व आराइश के मनसूबे के इफ्तिताह पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में सकाफती वर्सा बहाली के 35 मनसूबे अमरीकी हुकूमत के ताउन से जारी हैं।
घंटा घर इमारत की बहाली का मकसद मुल्तान के सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ है। ये एक शानदार कम्युनिटी सेंटर होगा जो मुल्तान के माजी और मुस्तकबिल के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने उर्दू में कहा कि मैं घंटा घर की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह करती हूँ। प्रोफेसर साजिद मंडल ने कहा कि US कौंसलेट की फंडिंग और वॉलेट सिटी अथॉरिटी के ताउन से घंटा घर की इमारत में क्राफ्ट म्यूजियम, लाइब्रेरी, क्राफ्ट मार्केट, कैफ़े और दस्तकारी का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। इस मौके पर मुल्तान के कदीमी नक्काश ख़ानदानों के हुनरमंदों उस्ताद बाकिर नक्काश और उस्ताद अब्दुर्रहमान नक्काश ने अपनी ख़ानदानी नक्काशी के कदीम और नायाब नमूने म्यूज़ियम के लिए पेश किए। फैसलाबाद के कैंसर हस्पताल में छाती के सरतान के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे आगाही के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट देखते हैं। पीनम कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर के रोकथाम की इकदामात से मुतालिक सेमिनार हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। सेमिनार में मुकर्रीन ने ब्रेस्ट कैंसर के फैलाव की वजूहात, पाकिस्तान में इसकी शरह और इसके रोकथाम के लिए इकदामात और जरूरी एहतियातों से मुतालिक गुफ्तगू की। इस मौके पर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए वाक भी मुनाकिद हुई, जिसकी क़यादत पीनम कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बाबर इमरान ने की। सारी आवाम के लिए पैगाम ये है कि जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें नज़र आए, कोई गिल्टी पता चले या अगर कोई ब्रेस्ट के अंदर कोई उनकी शेप के अंदर प्रॉब्लम आता है तो फ़ौरन अपने करीब तरीन जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेंटर है उसके अंदर जाएं और अपनी तशखीस भी करवाएं और अगर इलाज की ज़रूरत हो इलाज भी करवाएं। पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 20 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कैंसर के मरीज़ों की काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी डायग्नोसिस भी होती है और उसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी होती है। जंक फूड है, फास्ट फूड है, फैटी डाइट्स हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि इस कैंसर के रिस्क को कम, ये ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को कम करता है बल्कि बाकी भी जिस्म में होने वाले सारे कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में मेन रीज़न है। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए एहतियातें दर्ज थीं। ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर से एहतियात, खुद मुआयना और काबिल इलाज होने का शऊर देकर इस मुज़ी मर्ज की शरह को कम किया जा सकता है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 95,000 से ज़ायद ख़वातीन को 99 करोड़ 84,45,000 रुपए से ज़ायद रकम की अदायगी जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ जुलाई से सितंबर तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं खावर अली चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। ज़िला साहिवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 95,090 रजिस्टर्ड ख़वातीन हैं, जिनमें से 33,837 ख़वातीन तहसील चिचावतनी, 61,253 ख़वातीन तहसील साहिवाल की रजिस्टर्ड हैं। इन ख़वातीन को 99 करोड़ 84,45,000 रुपये से ज़ायद रकम की अदायगी जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला भर की मुस्तहिक़ ख़वातीन को 3 माह की एक साथ की अदायगी हो रही है। 83,000 के करीब बेनिफिशरीज जो हैं वो पेमेंट ले चुकी हैं और जो बकाया हमारे इसके लिए हमने तकरीबन 10 कैंप साइट्स बनाए थे पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो बकाया अब जो बेनिफिशरीज रह गई हैं उनके लिए हमने 2 कैंप साइट्स रखे हैं और 88% बेनिफिशरीज जो हैं वो हमारी पेमेंट ले चुकी हैं। ज़िला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की अदायगी के लिए तहसील साहिवाल में 1, तहसील चिचावतनी में 1, कुल 2 कैंप साइट्स पर इस वक्त रकम की अदायगी जारी है, जहां से बासाने रजिस्टर्ड ख़वातीन रकम की वसूली कर रही हैं। हुकूमत का शुक्रिया, उन्होंने हमें ये पैसे दिए, हम ये घर पर अपना राशन पानी खरीदेंगे। हुकूमत का शुक्रिया। हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमारी मदद की और हमें घर के अखराजात के लिए पैसे दिए, इससे हमारे घर का निज़ाम चल रहा है। मुस्तहिक़ ख़वातीन को इस रकम की अदायगी का सिलसिला नवंबर तक जारी रहेगा। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। तो उसके साथ बहुत सी बेहतरी आ जाएगी। तो ये फूड फॉर थॉट है, आप करना चाहें तो असेंबली का फ्लोर आपके लिए हाजिर है। आई एश्योर यू दैट कि हुकूमत पंजाब भी इसमें आपकी पूरी मुआवनत करेगी और असेंबली के फ्लोर से आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। जो कुछ हम कर सकते हुए करेंगे इंशाल्लाह। लास्टली मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। ये प्रेस क्लब मेरे अपने घर जैसा है। हॉस्टल में रहते हुए इसकी कैंटीन में खाना खाने आते रहे हैं। जब खुद कभी किसी तकलीफ़ में आए हैं, यहाँ से उस तकलीफ़ से बचने के लिए एक साहिबान ढूंढते रहे हैं तो इसी प्रेस क्लब में ढूंढते रहे। कभी किसी मुश्किल वक्त में किसी आप जैसे किसी सहाफ़ी भाई की मदद लेकर कहानी छापकर, तब सिर्फ प्रिंट होती थी जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त भी ये एक ऐसी इमारत है, एक ऐसा घर है जिससे एक उम्मीद वाबस्ता होती है
और उम्मीद हर जगह से वाबस्ता नहीं हो सकती। तो जिस जगह से उम्मीद वाबस्ता हो हमेशा उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि आपकी ये प्रेस की बॉडी और आप सब मिलकर इसको मज़ीद तक़वियत दें और इसके एहतराम में कमी ना आने दें। शुक्रिया स्पीकर साहब ने अभी जो बात की। हमारे एक क्वेश्चन मैं लूँगा, हाथ खड़ा करेगा जो बंदा। असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक महमूद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि सहाफ़ियों के मसाइल हल किए जाएंगे और तमाम तर मसाइल हल करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों के मसाइल हल होने चाहिए। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश और बुलंदोबाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि सिंध में गर्म रहा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ते पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। आप खबरनामे में आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का हवाल। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दूसरा ग्रुप कराची में से मेलबर्न पहुंच गया है। और यहां पे आपको बताते चलें कौमी क्रिकेटर्स आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और इरफात मिनहास शामिल हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का 7 अफराद पर मुश्तमिल पहला ग्रुप पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 4 नवंबर को वनडे मैच से होगा। और वो शहादत कलम बंद करने के बाद वो जजा सजा हो तो फिर आप ये डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ये साकिब निसार साहब की अपनी जजमेंट थी और किसके केस में थी आप सब जानते होंगे। राना आफ्ताब जो हमारे पीपल्स पार्टी के पहले डिप्टी पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर थे फैसलाबाद के, और फिर अब वो आजकल भी तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, असेंबली के रुकन हैं। उनके केस में ये जजमेंट दी उन्होंने। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ का केस आएगा तो ना कोई इफ्तिखार चौधरी उसको देखेगा, चाहे वो यूसुफ रजा को घर भेजना हो, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब को घर भेजना हो। 184(3) में पैक कर दो और इनको वापस भेज दो। यानी जिस किसी ने भी इख्तियार लेना है उसने इस पार्लियामान के खिलाफ लेना है। तो मेरा सवाल इन पार्लियामेंट के मेंबर से ये था कि या आप लोग आइन नहीं पढ़े हुए, या आपका इस ग्रीन बुक से कोई रिलेशन नहीं है, या आपने ये खुद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप उठाकर देख लें, वो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स पढ़ लें। किसके सामने ये मुतमईन नज़र था कि 184(3) में हुकूमतों को घर भेजा जाएगा? और ये 62-63 जनरल ज़ियाउल हक साहब ने डाली है भाई साहब। आइन में ये नहीं थी। 1973 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने तक हम ये बात करते रहेंगे। अब जजेस ने क्या किया? जजेस ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये इख्तियार के जज कौन होगा ये खुद ही जज फैसला करेंगे, कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता। ये इख्तियार के जज कौन नहीं रहेगा ये भी फैसला जज खुद ही करेंगे।
अगर इस 26वीं आईनी तरमीम के किसी एक नुक्ते पर कोई शख्स मोतरज़ है तो ज़रा बताए कि क्या बात है। अगर जजेस लगाने का इख्तियार, वेस्ट में आप चले जाएं, पहले आप देख लें वो जो डेमोक्रेसीज, वो जो जुडिशरीज ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स अपनी दुनिया से तारीफ करवा रही हैं, क्या उस अपॉइंटमेंट में कांग्रेशनल कमेटीज़ का, उन रिमूवल ऑफ जजेस में कांग्रेशनल कमेटीज़ का, कॉमन्स की कमेटीज़ का, लेजिस्लेटिव कमेटीज़ का कोई रोल नहीं होता? इंक्विजिटोरियल रोल होता है, पूछ गछ करते हैं सामने खड़ा करके कि बताओ कैसे था ये। आप जब कोई अपने लिए प्रिंसिपल लेट डाउन करें तो वहां की मिसाल उठाकर लगाकर उसको आप एक बड़ा एक जबरदस्त प्रिंसिपल के तौर पर उसको ला के आप उसे पोस्ट कर दें, लेकिन जब इस तरह की बात पे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना हो तो कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता, जो बात करेगा वो कंटेम्प्ट करेगा। नो सर, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये एक दुरुस्त सिमत में उठाया गया कदम, एक कदम है, एक कदम। शायद इनको कुछ और चलना पड़े। मैं ये कह रहा हूं कि ये अरकान पार्लियामेंट सिर्फ एक बुनियादी बात को समझें कि अगर आप ये जगह छोड़ते चले जाएंगे फिर शिकवा ना करें किसी से। ये अरकान पार्लियामेंट सोचे ना कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज का जो किरदार था, जब आपने उसको डिसफंक्शनल किया, गैर मुअस्सर किया, उसकी इफादियत कम हुई तो ये नैब जैसे बेहुदा अदारे बन गए और क्या हुआ, मुल्क का सत्यानाश करके बिठा दिया। आइन के अंदर जो ये चीज़ें थीं, जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी एक मुफस्सल डॉक्यूमेंट थी, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट थी, लोगों ने अपनी ज़रूरत के ताबे, अभी देखें ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिग्नेटरी सिर्फ ए या बी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी तो नहीं है, उसमें तो कई लोग शामिल थे। और उसमें अगर आज तहरीक इंसाफ वालों की कोई सियासी सोच बदल गई तब शायद ये थी, लेकिन अपने मुफाद के तहत कोई और सोच बदले और उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहे कोई कैसे करे, लेकिन असूल एक ही है, नोबडी कैन बी जज ऑफ देयर ओन कॉज। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मुझसे पहले बड़े संजीदा लोग जिनकी लिखी किताबें पढ़कर अक्सरियत इन जज साहिबान की आज अपने फैसले करती हैं। सबसे पहले मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई आज से 6-7 साल कबल जस्टिस फजल करीम साहब ने। उनकी किताब जिंदा जावेद किताब आज भी, द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वो किताब आज भी मुंह चढ़ा चढ़ा कर सवाल पूछती है। मुझे उन्होंने कहा इसकी 300 कॉपियां करा और ये जाकर हर कौमी असम्बली के रुकन को दिया कि इसको पढ़ लें, शायद उनके पास वक्त नहीं। मैं तो सिंपल एक बात खाई साहब कह रहा हूं कि ये तब्दीली जो है जिसमें आप कह रहे हैं कि ये तरमीम जो है आइन के उसके अंदर, तो ये बुनियादी सवाल को तय करती है। अगर तो आप ये मुनासिब समझते हैं कि मैं बतौर पार्लियामेंट क्यों बतौर असेंबली के मेरे कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है, वाई? कल को ये एग्जीक्यूटिव कह दे जिस बुनियादी ढांचे की तशरीह वो कर रहे हैं जज साहिबान उस फैसले में, बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में, कल को ये कह दे, एग्जीक्यूटिव कह दे कि हम पार्लियामान को जवाबदेह नहीं है, उनका हमारे से कोई तल्लुक नहीं है, हम खुद ही अपने आप को तय कर लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक बंदा उठाएंगी और उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना के बिठा देंगी, देयर इज नो रोल ऑफ द पार्लियामेंट, उसको बीच में से निकाल के फेंक दे। कैसे होगा? ये कोई मकरी है? दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अगर इसमें कोई कमी है मुझे नहीं पता, ये प्रेरोगेटिव लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब का है, प्राइम मिनिस्टर साहब का है, बिलावल भुट्टो साहब का है, पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है उनका है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, कौमी असम्बली में बैठे अरकान का है। ये वो अपनी इसके ऊपर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अर्करेजी करें, देखें, गौर करें और इसको वापस अपने असल उस बुनियादी ढांचे में लाएं जिसमें होना चाहिए। एक मिनट यार, नदीम, एक इस तरह नहीं, राव साहब सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे आप, राव साहब ऐसे नहीं, सवाल इस तरह नहीं।
साहब मैं तो ये बार बार कहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा किया ये बात की। मेरा ये मानना है कि आज का जो मुआशरा है ये अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। इस मुआशरे को आप ना तलवार के ज़ोर से बना सकते हैं, ना आज स्टेट किसी एनेक्सेशन की बुनियाद पर बन सकती है, ना आज सोसाइटी अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के सोसाइटी भी तरतीब नहीं पाती, सोसाइटी भी नहीं आप बना सकते। मेरा ये कहना है कि जो मुआशरे अल्फाज पर तरतीब दिए जाते हैं उसमें डायलॉग के बगैर और रास्ता नहीं होता। अगर आप एक फरीक मैं हूँ और एक फरीक मेरे मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ाई बढ़ाते चले जाते हैं, उसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जाता है, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान स्टेट को होगा, उसका नुकसान सोसाइटी को होगा, सिटीजन को होगा। उसका नुकसान जो है अब मजमूई तौर पर कभी मईशत तरक्की नहीं कर सकती जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है। यू कीप ऑन फाइटिंग टू ब्रिंग इन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप देखें, मैं नहीं कुछ कह रहा, मेरा ये मानना है कि कुछ अफराद का क्योंकि एक बाई पार्टीजन पोजीशन पर मुझे अब चाहे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक था, लेकिन स्पीकर के ओहदे का मैंने हल्फ उठा लिया, ये आईनी ओहदा हो गया। अब मेरे पर कुछ हदूद व कयूद है, मैं एक ख़ास हद से उस हल्फ को उठाने के बाद आगे नहीं जा सकता। मुझे एक बैलेंस मेंटेन करना है, दरमियान की बात करनी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा किरदार ये हो, आपने भी खुद शहादत दी कि मैं अगर चेयर पे बैठता हूं तो मैं ऑपोजिशन को मौका देता हूं कि आप बात करें। ये एक इवेंट है ना, और ये उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपने मुझे इस बात की निशानदेही की। अब इवेंट क्या है कि आप फैसला कर लेते हैं कि आप केपी से वजीर आला की क़यादत में एक जत्था लेकर आएंगे जो मुसल्लह होगा, जिसके साथ क्रेन्स होंगी, जिसके साथ आर्म्ड मिलिशिया होगी, जिसके साथ आपकी पुलिस के कंटिंजेंट होंगे जो सिर्फ इस मकसद के साथ आपके चल रहे होंगे कि वो फोर्सफुली जो अगले लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनके बैरियर्स को उठाएंगे। वहाँ पर एरियल फायरिंग्स होंगी, वहाँ पर लोगों का लाइफ लॉस होगा, और ये एक दफ़ा नहीं होगा। परवेज़ खटक साहब ने भी ये किया, अली अमीन भी ये कर रहे हैं। क्या तमाशा है? ये कुरान वस्ता का दौर है। ये जत्थाबंदी, ये लश्कर कशी दारुल खिलाफे पर हर आप तीसरे रोज, ये क्या स्टेट है? मेरा डायलॉग आज क्या है? मैं स्टेट से कह रहा हूं अपनी रिट इन्फोर्स करो। अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो ये जंगल बन जाएगा। इन्फोर्स दैट रिट। ये गवर्नमेंट में बैठे लोग अपनी इस हुकूमत के अंदर, ये एहतजाज नहीं है, ये वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है जो मेरी लाइफ को डिसरप्ट कर दे। ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट है जब नतीजे में आग लगती है, नतीजे में बसेस तोड़ दी जाती हैं, नतीजे में मेट्रो स्टेशंस को जला दिया जाता है, नतीजे में अस्करी बैंक को आग लग जाती है, नतीजे में 29 छावनियों पर एक ही दिन हमला हो जाता है। और मैं इसको समझ रहा हूं ये मेरी सियासत है। सर, मैं अगर आज किसी से बात करना चाह रहा हूं तो मैं उन जिम्मेदारान से बात करना चाह रहा हूं, चाहे वो फौज है, चाहे वो जज है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं एज ए सिटीजन बात करना चाह रहा हूं। और मेरा गुनाह तो मेरे हाथों पे डालो यार, किस चीज की सजा है? मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता कि बाहर इंतशारी फिर रहे, खवातीन बेटियां घर से बाहर नहीं जा सकती कि जॉब पर कैसे जाएं, बाहर इंतशारी फिर रहे, 6-6 दिन पूरी पब्लिक लाइफ डिसरप्ट करके बर्बाद। व्हाट इज दिस? इज दिस अ पॉलिटिकल पार्टी? हद होती है। और आप जब बात करते हैं, आप क्यों बात नहीं करते तालिबान के साथ? बारिश हैं, पाबंद सोमो सलात हैं, किस लिए बात नहीं करते उनसे? आप इनसे बात करेंगे। मैं जिस जमात का किरदार इंतशार का होगा, मैं डायलॉग का हामी हूं। आए गलती माने, अगर मेरी गलती है मैं मानता हूं, तैयार हूं। मैंने ये गलती माननी है कि मैंने कहां पर गलत किया। अगर किसी वक्त पर मेरी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की, गलत की, मेरे में जुर्रत है, मैं कह रहा हूं। क्यों किया? कब? कौन थे मुशाहिर जिन्होंने ये मशवरा दिया? कहां है आज तारीख के सफ़ों पर वो लोग? शॉर्ट लिव्ड। ये अकल के अंधे, इनको नजर नहीं आ रहा ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये लोग नहीं कबूल करेंगे ये बातें। पब्लिक ये चंद लम्हों की रोमांस
ताहयात का पटा नहीं है, परपेचुअल लीज नहीं है। आपने ये इंतशार फैलाए, आप इसका टोल पे करेंगे, कॉस्ट, ये पाकिस्तान के लोग आपसे इसका हदिया वसूल करेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। नदीम साहब, यार वो सब ठहर देना, देख लिया।